Dear students, good morning to my all class 10 students in CBSE board. Okay. Now today is start from the trigonometric ratio of an acute angle. Already you have known about the acute angle. Those angle having the measurement of less than 90 degree is called the acute angle. So हम लोग को जो टॉपिक है जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करोगे एन एक्यूट एंगल ऑलवेज एक्यूट एंगल बट दिस एक्यूट एंगल इन्वॉल्व इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ओके सो देयर आर 6 टाइप ऑफ एंगल्स सो ओनली टिक द वन right angle triangle from the sixth angle okay already you have known then the right angle triangle first of draw the right angle triangle okay this is the right angle triangle a triangle all triangle having the own name okay now this triangle is a b c at b point mein right angle this is the symbol of you can write also 90 degree or use the symbol of the 90 degree okay first of all trigonometry पहले first the relation between the three sides okay the opposite sides of a right angle triangle right angle is always greater than this side is called the hypotenuse this side is called the hypotenuse okay and another two side be the perpendicular and this side is the base. The three sides, okay. Name of this three side in a right angle triangle. Now relation between the hypotenuse, perpendicular and base in theorem of the Pythagoras theorem. So keep in aside. In short form you can write the hypotenuse and this is the short form P and this is the short form B. Okay. The relation between the h square equal to p square plus b square. Okay. Sorry. P square h square equal to p square plus b square. You have to remember always in the topic of the trigonometry ratio find the so h square plus p square plus b एवरी ट्रिगोमेट्रिक चैप्टर में इसको तुमको यूज करना पड़ेगा दिस इज द ओके द रिलेशन बिटवीन द हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर एंड बेस दिस इज कम फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम सो h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नाउ कम द टॉपिक ऑफ दिस द राइट एंगल ट्रायंगल again draw the right angle triangle so this is the topic our topic is trigonometric ratio this is the right angle triangle okay 90 degree you can also now first of all remember the acute angle means less than 90 degree so these two angles the 9 acute angles these two angles will be acute angle triangle so take this angle is theta okay theta is less than 90 degree and trigonometric ratio में trigonometric the ratio में there are the 6 ratio part so only you have to remember this is called the sine okay this is the function of the trigonometry sine and sine the full name is sin sine so short form में sin not the pronunciation this is the read as sine and take an angle acute angle here is the sine theta ठीक है take another trigonometric function the trigonometric function cos theta so trigonometric always stay on the along the sine or cos with angle के साथ रहेगा बेटा now another the third is the tan theta ठीक है ना बेटा there are the three and it has the reciprocal means उल्टा जैसे cosec sin theta का ठीक reciprocal है cosec theta okay this is the reciprocal and cos theta का reciprocal sec theta and tan theta का reciprocal cos theta ठीक है ना this is the part of that there are the 6 trigonometric ratio in there
it has own value according to the right angle triangle. Okay, so you take this angle, okay, this triangle, theta is this angle, trigonometric function find करने जा रहे. This angle, according to this angle, this side always P, मतलब ऑपोजिट साइड ऑफ दिस एंगल जिसका हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करोगे उनको अनुसार है P एंड दिस साइड एंड B, ये तो ऑलवेज हाइपोटेनियस. ओके, ऑपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेनियस. इट इज एंड P एंड B विल बी चेंजेबल, वो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल. अगर इफ यू टेक दिस एंगल थीटा, suppose this staging angle, so this side will be the P and this side will be the B. So P and B, between the P and B will be changeable according to this angle. Okay. Now it has the own value sin theta. You have to remember sin theta equal to P by H, means hypotenuse. Cos theta equal to B by H and tan theta equal to P by B. ठीक है ना. मतलब इसको ये तीनों को हम लोग का अच्छा तरीका से याद करना पड़ेगा. जो इसको नेवर फॉरगेट, यू हैव टू रिमेम्बर ऑलवेज. ओके, सो ट्रिगोनोमेट्री जब भी ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर करोगे नेक्स्ट टाइम में हायर क्लास में करोगे तब इसका हम लोग हमेशा यूज करोगे. ये तीनों की यूज करोगे. साइन थीटा इक्वल टू P by H, cos थीटा इक्वल टू B by H एंड tan थीटा इक्वल टू P by B. ठीक है, एज वेल दिस रेसिप्रोकल. सो तीनों का साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा. सो दिस वैल्यू विल बी रेसिप्रोकल H by P. Okay, now sec theta. Sec theta is the reciprocal of cos theta. So it will be valued by H by B, and cot theta is the reciprocal of tan theta. So B by P. ठीक है ना. ये तीनों का खाली तीनों की याद रखोगे एंड रेसिप्रोकल में याद रखोगे. So now come to the, if you sin theta into cosec theta. Okay, if sin theta and its cosec theta reciprocal, its reciprocal is always 1. Okay, now cos theta into sec theta equal to 1. Now tan theta into cot theta equal to 1. हम यहाँ पे थीटा क्यों लिया? थीटा इज द चेंज वेरिएबल. इसको चेंज सकते हैं, थीटा का जगह अल्फा भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, ए स्मॉल लेटर इवन यू कैन राइट द एक्स लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, कुछ भी एंगल है. दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द एंगल. ओके, सो हम यहाँ पे लिखा जाएगा थीटा इज द लेस देन 90 डिग्री. सो दिस इज द एंगल मेजरमेंट, दिस इज द मेजरमेंट एंगल, दिस इज नॉट द नेम. सो थीटा इज द वैल्यू ऑफ द एंगल्स, इट इज नॉट द नेम ऑफ द एंगल्स बेटा. ठीक है ना, इसको याद रखोगे. ठीक सेम टाइप का देखो, सेम टाइप का यू कैन राइट द आल्सो. देखो ठीक साइन थीटा इक्वल टू, ये भी याद रखना पड़ेगा 1 बाय कोसेक थीटा. ओके बेटा. नाउ cos थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा. नाउ tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा. ठीक है ना. जिसका रेसिप्रोकल जैसे xy इक्वल टू, सपोज xy इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू 1 बाय y अकॉर्डिंग टू द लीनियर इक्वेशन फॉर्म. से इसी हिसाब से कर ले. ठीक है, एज वेल एज देखो ठीक सेम टाइप का. देखो यहाँ पे कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय tan थीटा. सिचुएशन कंडीशन के ऊपर याद रखने पड़ेगा कौन सा कंडीशन हम लोग यूज करेंगे. मेन पार्ट ये तीनों का अच्छा बढ़िया से याद रखना पड़ेगा था. एंड ऑलवेज फिगर एंड अकॉर्डिंग टू द एंगल्स दिस विल बी द P and B and H to always fixed value. So opposite side of the right angle is the hypotenuse always. So इसको हम लोग का अच्छा तरीका से याद रखेंगे. ठीक है बेटा. एंड आफ्टर दैट कम जो की पहले देखो tan theta, and the relation देखो tan theta is equal to sin theta by cos theta. ये भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा. ठीक, ऑपोजिट है एज वेल cot theta equal to cos theta by sin theta. ठीक है ना बेटा. इसका हम लोग का ऑलवेज यूज रखोगे.
हम लोग का जब भी हम लोग का मैथ बनाते जाओगे, शायद तो तुमको कोई टीचर बता दे और पंडित बोले हरि बद्रीनाथ, ये सब मत पढ़ो, एकदम आराम से करोगे। साइन थीटा इक्वल पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल पी बाई एच, tan थीटा इक्वल पी बाई बी, ये तुमको हमेशा लगता है, ये तीनों याद होगे। तो तीनों का बेस में इसको ध्यान रखना पड़ोगे। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, cos theta का रेसिप्रोकल sec theta, tan theta का रेसिप्रोकल cot theta. So it will value will be the reciprocal h by p and h by b and cot theta equal to b by p. This is the reciprocal of the tan theta value. ठीक है, ठीक है। तो वन इज sin theta into cosec theta, ये ऑलवेज वन होगा। ठीक इसी टाइप का हम लोग को देखो यहाँ पे लिनियर को से x y इक्वल टू एंड देन x इक्वल टू 1। ठीक है, y इक्वल टू 1 by x। ठीक है ना बेटा, ये भी हम लोग का यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। So you have to remember, so come and Pythagoras theorem हमेशा यूज करोगे। तब जैसे करोगे हम लोग और करोगे, फर्स्ट ड्रॉ द राइट एंगल ट्रायंगल। सब ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल के साथ चलेगा। ओके, पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। ओके स्टूडेंट, दिस इज द फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन इन गिवन फिगर, बट क्वेश्चन इज द अनदर टाइप का था, लेकिन हम जस्ट ट्रिगोनोमेट्री में डिस्कस किया था। जो दिस इज द एंगल, सो दिस इज द एंगल ए, मींस एंगल, वैल्यू ऑफ द एंगल यू कैन राइट हियर एंड सी। लेकिन एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन में था ए ट्रायंगल ए बी सी एट राइट एंगल बी, मैंने एक पॉइंट पे बी दे दिया, लेकिन इसको वर्टेक्स पॉइंट बेटा। सो हियर क्वेश्चन देखो, साइन ए कॉस ए एंड साइन सी एंड कॉस सी। So this is C. Here C is the value of the angle, measurement of the angles. So you can write the inside. Okay. So in this figure देखो, so there are the first of all three side को value को हम लोग का जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फाइंड करोगे तब तीनों साइड का वैल्यू किंतु हम लोग को मालूम होना चाहिए। Should be known the value of three side in this right angle triangle. Okay. It is not here, so this hypotenuse is not here. ये always hypotenuse beta. ठीक है ना? So first of all, find the value of hypotenuse. How to find the value? So by the help of the Pythagoras theorem, so you know h square. First of all, h square equal to p square plus b square. Just I have discussed about before the start the NCERT exercise question. Now this implies h square equal to value of p 24 square plus b7 square. Now this implies h square equal to 24 square means 5, 7, 6 plus 49. 7 is 49, 24. Okay, 7, 6, 9. Now we come, this h square equal to 625. Okay, just simplify. Now this implies h equal to, according to the quadratic equation, under root 6 to 25. Now this implies h equal to 25. So under root of the 625 is always 25. ठीक है ना बेटा? इसमें तुम प्लस में लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग को तो साइड का मेजरमेंट का लेंथ है ना, लेंथ का भी नेगेटिव नहीं होगा, इसके प्लस माइनस लिखने से ऑलवेज प्लस। So first of all, this side will come the 25 centimeter. According to the unit ले लोगे, यूनिट सेम होना चाहिए तीनों का सेम। Now find the sin A. लेकिन बट जब ये सब करोगे तब you write the first of all you can have sin theta equal to p by b and cos theta equal to p by h and b by h here and tan theta equal to p by b. ठीक है ना बेटा? p by b, ये तीनों बिंदु को p by h, b by h and p by b, sin theta equal to, इसको याद रखें। थीटा हम क्यों लिया? थीटा के जगह हम लोग का यहाँ पे यूज हुआ a। क्यों? थीटा इज द वेरिएबल, थीटा कुछ भी एंगल 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री। ओके, सो एंगल का, सो इट इज द एक्यूट एंगल होना चाहिए, सी भी हो सकता है, इसीलिए हम इसको याद रखोगे। सो साइन थीटा इक्वल टू p by h, cos theta equal to b by h and tan theta equal to p by b यूज करोगे एंड फाइंड दिस क्वेश्चन। फर्स्ट दिस हेल्प ऑफ दिस फिगर। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द फिगर, बार गिवन फिगर रहेगा, तीनों साइड का वैल्यू होना चाहिए। जब हम लोग का रेशियो फाइंड करोगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट जाएगा। सो देखो साइन ए, नाउ राइट क्वेश्चन नंबर 1, साइन ए, ओके साइन ए अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, देखो बेटा ध्यान में रखोगे, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल।
So this side will be P. So now write here P according to the A and it will be the B inside the bracket. ठीक है ना बेटा, इसको ध्यान रखोगे बेटा. P जब A एंगल के अनुसार जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करोगे, इनको अनुसार इनका ऑपोजिट साइड ऑलवेज P. Okay? Now P by B, write P by B. P by H. Okay, sin theta equal to P by H. Now sin A equal to P by H. Now write the value of the P. P is 7 and H 25. Okay. And सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं, सेंटीमीटर का रेशियो फाइंड करोगे, रेशियो में कोई यूनिट नहीं हो जाता है, इसलिए सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज द आंसर. नाउ इधर नेक्स्ट देखो cos A. Cos A equal to B by H. What is the B? B is the 25 already लिखा था प्रोग्राम. B equal to 24 not 5. Okay, and H 25. ये वाला आंसर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर आ गया बेटा. नेक्स्ट देखो 2, क्वेश्चन नंबर 2. साइन सी वैल्यू लिखने के पहले फर्स्ट हम लोग को लिखना है बेटा. देखो साइन सी लिखने के पहले हम लोग को जानकर रहना चाहिए which side is P, which side is B first of all. So cancel this P, एक ही P किंतु कैंसिल हो जाएगा. ये P आर हम लोग का रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि हम लोग लिख दिया तो पेन से इसका तो इरेज नहीं है, हम तो पेन से इरेज कर सकते हैं. According to this angle, this side will be the P, अपर पार्ट में P लिखो and this side is the B. Okay, तो यहाँ पे B आ गया तुम्हारा, ये P हो गया and this is the B. So sin C equal to same rule देखो ये वाला P by H. Sin C equal to P by H. P, what is the P value? P is 24. देखो according to this C के value पे according to this angle बेटा. ठीक है ना. चलो 24 by 25. H always 25. Now cos C equal to B by H. B 7 by 25. This is the answer. ठीक है ना. हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. ठीक है ना. ओके, सब everybody note down on your copy. Pause the video, note down on your copy बेटा. Okay student, the second question from the NCERT book exercise 8.1. In given figure देखो. So tan P and cot R. So this angle, this is the P and this is the R. Okay, इसका फाइंड करोगे. Find this tan P and tan R. Okay, given figure. First of all, before you will work out this question, so first of all write this value sin theta equal to P by H. इसको लिखोगे ही लिखोगे, लिखते लिखते याद हो जाएगा बेटा, हमेशा लिखो बेटा. Okay, and then cos theta equal to B by H and tan theta equal to P by B. You always लिखोगे and P by B and their reciprocal. You have to remember sin theta, reciprocal of sin theta is cosec theta, reciprocal of cos theta is sec theta, and reciprocal of tan theta equal to cot theta. Okay, clearly tan theta. ठीक है बेटा. Now theta is here the variable, so is in the here is the P and R is here this angle. ये तो राइट एंगल बेटा, ये तो राइट एंगल है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंड ये दोनों एंगल एक्यूरेट एंगल्स होना चाहिए. ठीक है ना. नाउ फर्स्ट फाइंड द tan P. You will find the tan P minus cot R. इसको वैल्यू फाइंड करोगे. इसको फाइंड करने से पहले देखो ए वैल्यू इज नॉट इज गिवन हियर. B is not here. So first of all find the पाइथागोरस थ्योरम से. सो B माने हम लोग का H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. इसका अगर कोई किसी को हम लोग को दोनों से एक चीज हम फाइंड करते तो B को फाइंड करोगे. नाउ इक्वल दिस इम्प्लाइड B स्क्वायर इक्वल टू यू कैन राइट दैट B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर. ठीक है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर. ओके, नाउ राइट हियर
this implies b square equal to h square, h means 13 square minus 12 square. Then b square equal to a square minus b square यूज कर दो, स्क्वायर फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़े, a square minus square माने 13 plus 12 a plus b into 13 minus 12 a square minus b square का फॉर्मूला यूज करो. Now write here b square equal to 25 into 1. So this implies b square equal to under root. Okay, 25 into 1. So b equal to under root and then this implies b equal to 5. ठीक है बेटा? So इसका वैल्यू कितना आ गया? 5 centimeter. Now write here outside. Okay, first of all find the value of b on this side. तीनों साइड का वैल्यू किंतु हम लोग का known होना चाहिए. Then you can find the trigonometric ratio of any angles. Okay, माने acute angle. Here is p. So p according to the p this angle अनुसार देखो a angle को अनुसार ये p हो जाएगा बेटा. माने परपेंडिकुलर. Here is the angle of p and यहाँ पे p देखो परपेंडिकुलर and ये तो b then and a always is. इसको कोई चेंज नहीं कर सकता. opposite side of the right angle. ठीक है ना? And जिसको हम लोग trigonometric ratio फाइंड कर दो उनका अनुसार according to on the basis of this angle opposite side will be the p माने perpendicular. Now write tan p means देखो p by b. So p here देखो p by b माने p का वैल्यू कितना 5 सेंटीमीटर. ओके एंड डिवाइडेड बाय b देखो 12 सेंटीमीटर. एंड सेंटीमीटर लिखने को जरूरत नहीं, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाए क्योंकि रेशियो में कोई यूनिट यूज होता है एवं इसको ध्यान में नहीं रखने से. लेकिन तुम ध्यान में रखोगे दोनों यूनिट जाना सेम होना चाहिए. तीनों के यूनिट सेंटीमीटर 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 होना चाहिए बेटा. अगर ये सेंटीमीटर मीटर मीटर दे दिया सो कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट इनटू द सेंटीमीटर. नाउ राइट माइनस क्वार्टर. सो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल ये कैंसिल हो गया बेटा, ये कैंसिल कर दो एंड इज कैंसिल. अकॉर्डिंग टू दिस एंगल दिस साइड ठीक ऑपोजिट साइड विल बी द p. ये काम आ गया p एंड दिस साइड p. ये रिमेन सेम हाइपोटेन्यूज. ये दोनों एक्सचेंज कर देंगे बेटा. ध्यान में रखो बेटा जो एंगल काम करने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करोगे अकॉर्डिंग टू दिस एंगल होने से परपेंडिकुलर आ जाएगा एंड रेस्ट ऑफ द साइड विल बी द बेस. ये तो समझ गए चीज बेटा. नाउ इज राइट कॉट. कॉट किसका रेसिप्रोकल? हुज रेसिप्रोकल पार्ट? ट्रिगोनोमेट्रिक tan. फर्स्ट tan को करो tan थीटा इक्वल टू p by b एंड b by b हो जाएगा. ठीक है ना? b क्या चीज है बताओ? इसका b दो कितना 5 है, चलिए यहाँ पे 5 आ गया b एंड b कितना है देखो यहाँ पे देखो b कितना हो जाएगा बताओ? b इक्वल टू ये तो यहाँ पे देखो b by p कॉट तो b 5 एंड p देखो 12 सो इट विल बी द 12 लिखोगे. अगर देखो दोनों सेम क्वांटिटी 5 by 12 minus 5 by 12 सेम क्वांटिटी से हम लोग डिफरेंस फाइंड करोगे. सेम क्वांटिटी देखो 3 minus 3 ऑलवेज 0 और इसको एलसीएम करने की जरूरत है. ये डायरेक्ट लिख दोगे आंसर. ठीक है बेटा, ये आंसर आ गया. ठीक है समझ गए सीधे बेटा. ये अगर सेम क्वांटिटी का हम डिफरेंस फाइंड करोगे तो ऑलवेज यूज 0 हो जाएगा. इसीलिए आप इसको एलसीएम करके नहीं पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी. ओके student, the third question, if sin A equal to 3 by 4, calculate cos A and tan. In this figure, देखो, first of all draw this triangle. Okay, right angle triangle. Any right angle type of triangle draw करोगे first draw right angle triangle. Okay. This is right angle triangle बेटा. So 90 degree. According to the side, it will be the hypotenuse, and you can write P and B. So, agar if the sin A, this is the angle. The angle is here, so you can write the A. This angle को हम लोग trigonometry ऐसे find करोगे. So according to this will be the P, and the here है B. ठीक है ना बेटा? A ताले H, P and H हमको understanding हो गया. Now write given देखो here if माने given देखो given sin A equal to 3 by 4.
जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करें, जब भी ट्रिग्नोमेट्री इसको हम लोग का हमेशा लिखोगे, हम लिख करेंगे देखो sin थीटा इक्वल टू p बाई h, cos थीटा इक्वल टू v बाई h एंड tan थीटा इक्वल टू p बाई v। ये तुमको माइंड में सेट रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन देखो जो दिया गया sin a मीन इसका अनुसार sin थीटा, सोचो sin थीटा एक की जगह sin थीटा कैन थीटा वेरिएबल बेटा sin a इक्वल टू 3 बाई 4। नाउ वी कैन राइट sin a इक्वल टू हम लोग का इसको नहीं है तो हम लोग p बाई h लिख सकते बेटा, p बाई h। ठीक देखो p के साथ 3 के साथ इक्वल हो रहा, कुछ जगह तुम लोग k लिख सकते हैं, p इक्वल टू 3k, h इक्वल टू 4। k लिखने कोई फायदा नहीं है बेटा, क्यों k लिखोगे? क्योंकि हम तो फाइंड करने जा रहे हैं, क्या फाइंड करने जा रहे हैं? रेशियो फाइंड करोगे, k तो कॉमन शेयर हो जाएगा, यहाँ पे k लगा, यहाँ पे कोई आंसर नहीं, एकदम कंपेयर करोगे। p इक्वल टू 3, सो p राइट हियर 3 एंड h देखो 4। इसमें यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी यूनिट लिखो यूनिट्स हो जाएगा, ना सेंटीमीटर ना मीटर ना फुट ना किलोमीटर लिखने कोई जरूरत नहीं। नो रिकॉर्ड टू राइट द यूनिट्स, ओनली माइंड को 4 यूनिट 3 यूनिट। एंड देखो हियर 4 देखो b इज नॉट हियर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द b। ठीक है बेटा, the how to find the b? So by the help of the Pythagoras theorem, so h square, first of all h square equal to p square plus b square, okay, b square। now write the b square, clear लिखो b square, so b square will be left hand of b square, this implies b square equal to बोलो p square h square माइनस p square होगा, ठीक है ना, h स्क्वायर माइनस p square होगा। नाउ राइट हियर b square इक्वल टू h हियर द 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, सो दिस इंप्लाइज a स्क्वायर मैंने b स्क्वायर यूज करोगे, ये 16 माइनस 9 भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सो 16 माइनस 9 छोटा नंबर लिख सकते हैं हमको, b स्क्वायर इक्वल टू 7 एंड देन b इक्वल टू अंडर रूट 7। ठीक है ना, ये अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि अगर किसी को देखो यहाँ x स्क्वायर इक्वल टू 4 देन दिस इंप्लाइज x इक्वल टू अंडर रूट 4 होगा। यहाँ पे प्लस माइनस लिखने के जो प्लस माइनस होता है अकॉर्डिंग टू द, सो माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्लस लिखोगे, इसीलिए हम यहाँ पे प्लस लिखे, क्योंकि आप लोग का डिस्टेंस का चल रहा है। ठीक है ना, नाउ राइट ये तो गिवन हो गया, तीनों साइड का हम लोग को जब भी राइट एंगल ट्रायंगल को तीनों साइड का वैल्यू हम लोग को मालूम होगा, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द cos a। ठीक है, नाउ cos a इक्वल टू फाइंड द cos a, cos थीटा इक्वल टू b बाय h, नाउ राइट b बाय h। ठीक है ना बेटा, b बाय h। नाउ b इक्वल टू व्हाट इज द b देखो यार अंडर रूट 7, इस साइड अंडर रूट 7 आ गया, so b is the देखो अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय h 4। चलो cos a का वैल्यू आ गया मेरे पास आसानी से। नाउ tan a, ठीक, अकॉर्डिंग टू द tan a इक्वल टू कितना होता है, tan a मींस tan थीटा p बाय b, सो p 3 एंड b अंडर रूट 3 बाय देखो 3 बाय अंडर रूट 7, दिस इज द आंसर। ठीक है ना बेटा, ये हम लोग को समझ गए कैसे। तो फर्स्ट किंतु वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 साइड का नोन होना चाहिए, देन अप्लाई द रेशियो। और यहाँ पे k लिखने की कोई जरूरत नहीं, आने से k लिखोगे k तो कॉमन हो जाए, k काट जाएगा, रेशियो फाइंड करोगे। सो हम जो बोल रहे हैं इसको अच्छा से करोगे, वीडियो को बार कर पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी लेटर। हेलो स्टूडेंट, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 4 गिवन। ओके, दिस इज द गिवन पार्ट 15 cot a equal to 8, find the sin and sec a। First draw the triangle बेटा, right angle triangle। First draw the triangle, okay, a right angle, this is right angle, according to the side this is the hypotenuse। You cannot p but you the here a angle, so you write here a, so according to this angle it will be the p side perpendicular and it will be the base b। ठीक है ना, now write the given part 15 cot a equal to 8। now you can write this implies cot a equal to 8 and cot a equal to 8 by 15। ठीक है ना, और लीनियर इक्वेशन के अनुसार देखो, यदि आगे यदि हम लोग को देखो
2x equal to 8, this implies x equal to 8 by 2, this equal to x equal to 8 by 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये लीनियर इक्वेशन का रूट ठीक इसी तरह। 15 is the coefficient of cot A, so cot A equal to 8 by 15. Now right, so इसको जरा हम लोग को ध्यान में रखने पर जो sin थीटा इक्वल p by h, cos थीटा इक्वल b by h, tan थीटा इक्वल p by b, ऑलवेज रीड करोगे। ओके, नाउ राइट हियर cot A equal to तो tan A equal to यदि p by b होगा तो cot A इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा b by p आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। ओके, नाउ राइट अब तो p कितना b कितना होगा 8, so now राइट हियर 8 एंड p कितना हो जाएगा बताओ, p हो जाएगा तुम्हारा 15, ठीक है ना। सो h not here, so find the value of the h mean hypotenuse, so h is the by the help of the Pythagoras theorem, so now h is equal to डायरेक्ट लिख सकते हैं h equal to अंडर रूट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, नाउ बार बार लिखते हैं दिशा में अगर तुम लोग थक जाओगे, माइंड तो सीख गया तो p स्क्वायर की लाइन लिखना, p स्क्वायर p का वैल्यू देखो अंडर रूट 15 स्क्वायर प्लस देखो 8 स्क्वायर, नाउ 15 स्क्वायर 225 225 प्लस 64 16 स्क्वायर इक्वल टू एड 289 का अंडर रूट 17। ओके, इसमें देखो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अनुसार प्लस में लिखने चाहिए थे, किंतु प्लस में नहीं लिखोगे, ऑलवेज प्लस लिखोगे क्योंकि लेंथ का है। तो हम लोग यहाँ पे 17 का वैल्यू आ गया, 17 का देखो 8 9 8 हो गए 17 स्क्वायर, सो एज कितना हो गया 17। ओके, इसमें कोई सेंटीमीटर लिखने को जरूरत नहीं, खाली यूनिट लिखोगे ना, के लिखोगे, इसमें तुम्हारा कोई चीज का के सब लिखोगे, बाल तो हेड है। लेट अस द p इक्वल टू b इक्वल टू 8 के p इक्वल टू 15, के लिखने कोई जरूरत नहीं, काम के तो हम कैंसिल हो जाएगा। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ द sin a, next is to find the value of sin a according to this figure बेटा, फर्स्ट फिगर से अनसेंडेड ये फिगर तुमको हेल्प करेगा फाइंड द वैल्यू sin a। sin a इक्वल टू देखो sin a इक्वल टू देखो तो हम लोग को p by h लिखोगे, व्हाट इज द p 15, ओके, a इज देखो 17। समझ में चीज को बेटा, इसको हम लोग का समझ में कैसे हम लोग को फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो sec a, नेक्स्ट sec a कितना हो बताओ, sec किसका रेसिप्रोकल cos का देखो b by h, so sec हो जाएगा h by b, now h by b, h कितना देखो 17, ओके, b देखो 8, तो इसका देखो आंसर हम लोग आ गया, समझ गए सीखो, एक हो जाएगा तुम्हारा 15 by 7 and 17 by 8, दिस इज द आंसर, ठीक है बेटा, एक आंसर हो गया। Okay, pause the video, note down on your copy. Okay, hello students. The question number 5. Given sec theta equal 13 by 12, calculate all other trigonometric ratios. दूसरा को लिखोगे, यहाँ पे sec दे दिया, अब बाकी 5 से को हम लोग को फाइंड करोगे। तो how to find? First of all, draw the right angle triangle. ठीक है ना, फर्स्ट ड्रॉ। ओके, जस्ट मार्जिन के बगल में तुम ड्रॉ करोगे फर्स्ट। देखो इसमें एंगल इज हियर थीटा, okay, this angle theta and a into 90 degree, according to the 90 this will be the hypotenuse, and this angle according to this angle theta consider p side on a perpendicular, this is the base। okay, समझ गया थ्री साइड का। नेक्स्ट इज द गिवन, देखो here given is sec theta equal to 13 by 12, now 13 equal to sec theta equal to कितना, देखो according to sec theta is the reciprocal of cos theta, b by h by b, so it will be the h by b। समझ गए इसलिए बेटा। now you write the h equal to कितना 13, now in the beside the side of the triangle and b equal to 12, so equal to 12 हो गया, ठीक है ना। यूनिट्स मतलब सेंटीमीटर कोई देखना है, तो फर्स्ट एंड देन द फाइंड द p। अगर यदि हम लोग h के छोड़े p एंड b को फाइंड करते जाओगे, so p equal to keep it 9 अंडर रूट देखो h स्क्वायर माइनस बोलो b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, h स्क्वायर। नाउ h इक्वल टू वैल्यू कितना 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ राइट हियर देखो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, सो यू कैन राइट देखो यहाँ पे
इसका मैंने 20 का था 13 प्लस 12 इंटू 13 माइनस 12 a plus b into minus b. So it is the 25 into 1. This is the 5. b का वैल्यू p का वैल्यू कितना आ गया? This is the 5. ठीक है ना? First of all find the three sides. Okay, two sides are given and third side आसानी से find कर लेंगे. Now write the आया देखो other calculate all other ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और आधा मैंने एक्सेप्ट सेक थीटा के छोड़ के बाकी फर्स्ट ऑफ फाइंड द साइन थीटा देखो अकॉर्डिंग टू द साइन थीटा इक्वल टू p बाय h. सो p इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? p 5 h देखो 13. ठीक एकदम आराम से करोगे, हाथ रखोगे, जिसका साइड हम लोग लिखने जा रहा है उसको साइड लिखोगे. देन फाइंड द cos थीटा. ये तो आसानी से आ जाएगा. इट इज द सेक 8 का रेसिप्रोकल तो 12 बाय 13 ये आ गया, ऑटोमेटिक आ गया. नेक्स्ट कम द tan थीटा. tan थीटा इक्वल टू p बाय b. p देखो p बाय b, p देखो यहाँ पे 5, b देखो 12. ओके, नाउ राइट द नाउ कम द व्हिच साइड cosec थीटा. cosec theta it will be the reciprocal 13 by 5 sin theta reciprocal. Now cot theta equal to the reciprocal किसका reciprocal tan theta के साथ इसको reciprocal 12 by 5. Okay, these are the 5 देखो 1 2 3 4 5 ratio. This is the answer. ठीक है ना? Rest of the another this is the okay. Pause the video, note down on your copy. Okay student, the question number 6, if A and B are values of acute angle. The question में इंटेंसिटी बुक दूसरा टाइप का था. वो एंगल A एंगल का सिंबल दिया था देखो, वहां पे एंगल सिंबल. इट इज नॉट द वैल्यू. द A दिस इज द नेम एंगल A का नेम बेटा. इट इज नॉट द वैल्यू ऑफ द एंगल A. ठीक है ना? सो क्वेश्चन इसी होना चाहिए था. एंगल A एंड B आर वैल्यूज ऑफ एक्यूट एंगल्स. तुम लोग भी कोई क्लास में जब जाओगे टीचर को पूछ सकते हैं सर क्यों एंगल का दिया गया. ये तो हम लोग को जो साइन है ना ये वैल्यू ऑफ द थीटा होना चाहिए और 30 डिग्री 50 डिग्री इसीलिए हम थीटा लिखा. यहाँ पे जो हम फाइंड कर दिस इज द वैल्यू. ओके, मीन्स डिग्री हिसाब से ये बना. और यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन में दिया गया सिंबल दिया ए एंगल एंड बी एंगल दिया गया. हम इसको रिमूव कर दे वैल्यू ऑफ द. ठीक है बेटा, ध्यान में रखोगे. एंगल ए एंड बी आर वैल्यूज ऑफ द एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B. यहाँ पे जो A यूज हो रहा है इसका एंगल का नेम नहीं है, ये वैल्यू ऑफ द एंगल बेटा. जहाँ पे हम cos A यूज कर रहे हैं, cos A यूज कर रहे हैं एंड cos B यूज कर रहे हैं. दिस इज द वैल्यू मैंने डिग्री हिसाब से इसको एक्सप्रेस कर रहा है. यू कैन नॉट राइट देखो cos एंगल सिंबल देकर लिख नहीं सकते, ये गलत हो जाएगा बेटा. ठीक है ना बेटा? हम लोग का यहाँ पे एंगल लेकर यूज नहीं कर, ये तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा. हम लोग लिख सकते ठीक यही पैटर्न में लिख सकते बेटा. ठीक है ना? तो रॉन्ग हम लोग का नहीं सीखना चाहिए. ओके, रॉन्ग हम लोग का नहीं सीखना चाहिए. हम लोग इसका एंगल ऑफ द वैल्यू होना चाहिए बेटा. ठीक है ना? नाउ ये प्रूफ देखो मैंने वैल्यू ऑफ एंगल ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ एंगल बी. तो हमने ए एंगल इक्वल टू ए इक्वल टू बी माने इसका 30 डिग्री होना चाहिए, ये भी 30 डिग्री होना, कुछ भी हो सकता है एंगल को निकाल सकते हैं. ये बड़ी आसानी से आ जाएगा. देखो सच दैट माने दिस इज द गिवन. सो गिवन देखो cos A इक्वल टू cos B. वेरी इजी बेटा, इसको ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं. एकदम आराम से दबा आ रहा है उनके एंगल को बदलना है. जिधर अगर इसी टाइप का cos A इक्वल टू cos B देगा, फर्स्ट इसको तुम्हारा दोनों हाथ का है फॉर्म, दोनों cos A को छिपा दो, पॉकेट में से रखो बेटा. पहले छिपाओ, हाथ से छिपा दो. क्या बच गया देखो cos A छिपा दिया, क्या बच गया A एंड B. अगर दोनों साइड में यदि cos A रहेगा यहाँ पे एंगल कुछ भी ले सकता है तो हम लोग इसको छिपा के देखो यहाँ पे cos. यू कैन नॉट यूज द पेन से कैंसिल कर नहीं कर सकते, ऐसे पर कैंसिल नहीं कर. देखो माइंड में इसको सीखो. दिस एम्प्लाइज A इक्वल टू A. ठीक है ना? ठीक राइट है. देखो अगर सपोज देखे यहाँ पे साइन ए क्वेश्चन इक्वल टू साइन बी. अगर ये क्वेश्चन रहेगा ये भी देखो दोनों सेम, साइन सेम, हाथ छिपाओ A. दिस एम्प्लाइज A इक्वल टू B. ये भी देखो इक्वल. अगर ये भी क्वेश्चन रहेगा देखो ये क्वेश्चन tan A इक्वल टू tan B.
सो tan tan को छिपाओ, दिस इंप्लाइज a इक्वल टू b। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखो बेटा, इसमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, इसमें तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर आना है। यू कैन नॉट यूज द सिंबल हियर एंगल ए, तुमको प्रूव करने वाला है एक वाला दिया, इसको प्रूव करना एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तुमको प्रूव करने वाला है। लेकिन हम लोग का डाउट ही हो गया क्वेश्चन में 6 में, इसको करेक्ट करोगे तुम्हारा जब क्लास खुलेगा तब टीचर को पूछोगे जो कहूँ यहाँ पे दिया गया एनसीईआरटी बुक में ये रॉन्ग था, ये होना चाहिए क्वेश्चन 6 नंबर ए होना चाहिए। 6 नंबर तुम देखोगे तुम्हारा बुक का क्वेश्चन हम दूसरे टाइप लिखा इसी टाइप, तो यहाँ पे हम लोग को प्रूव हो गया बेटा। ओके, यू कैन प्रूव हियर, हेंस प्रूव। ओके, पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी, इसी टाइप का प्रैक्टिस करो बेटा। ओके, हेलो स्टूडेंट, this is the question number 7. If cot theta equal to 7/8, evaluate one question, दो question दिया है, two question, 1 plus sin theta minus 1 minus cos sin theta divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। ठीक है ना बेटा, इसको कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन, if माने गिवन पार्ट, सो फर्स्ट ड्रॉ द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, एक राइट एंगल ट्रायंगल तुमको क्लियरली ड्रॉ करने पड़ेगा, ठीक है ना, एकदम आराम से करोगे। जहां पे तुम्हारा कॉपी मार्जिन है उससे लेफ्ट हैंड करोगे, राइट हैंड भी कर सकते हैं, यहाँ पे करोगे तो यहाँ कंफर्टेबल। सो दिस एंगल इक्वल टू थीटा। ओके, एक इन द राइट एंगल, ओके, राइट एंगल, इसको अनुसार हाइपोटेनियस, ये थ्री साइड का हम लोग होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस एंगल। थीटा को अनुसार पी साइड एंड इट विल बी द बी साइड बेस। नाउ इज हियर गिवन, देखो गिवन cot theta equal to 7/8। Now cot theta equal to tan theta के रेसिप्रोकल तो b by p। ठीक है बेटा, b by p, so b is equal to 7। Now write 7, b equal to 8। ठीक है ना बेटा, ओके, आराम से कर लोगे। Now we write the here अंडर रूट, देखो h इक्वल टू अंडर रूट, अगर ये दोनों इसको फाइंड करोगे तो ये दोनों को स्क्वायर हिसाब से आएगा, ठीक है ना। सर यहाँ पे देखो यू कैन राइट द 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, सो 9 का तो यहाँ पे देखो 64 प्लस 49 एंड ऐड करो कितना हो जाएगा बताओ, अंडर रूट देखो 13 113 बेटा। ठीक है, छोटा कर दो, ठीक है ना, और छोटा कर दो, कोई आसानी से देखना अच्छा लगेगा बेटा। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, तो यहाँ पे h की तो h आ गया तो बोला अंडर रूट 113। ठीक है ना, राइट है, तीन साइड का वैल्यू किंतु मालूम होना चाहिए बेटा किसी तरह। नाउ वी राइट द प्रूफ, देखो नाउ वी राइट द वैल्यू ऑफ द 1, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट देखो 1 प्लस साइन थीटा इनटू 1 माइनस साइन थीटा, ओके, डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा। ओके, इसमें देखो हमको बड़ी आसानी से इसको यूज कर सकते हो। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा मीन a प्लस b इंटू a माइनस b, सो यू कैन राइट हियर हम लोग का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, देखो यहाँ पे स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज किया, जस्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, a प्लस b इंटू ए माइनस बी, ये चीज हम यहाँ पे यूज किया था। देखो नाउ इसको 1 माइनस, जब इसको हम लोग का फॉर द सेक ऑफ ओके इन कन्वीनियंस आवर कन्वीनियंस इन द प्लेस ऑफ साइन थीटा इक्वल टू हम लोग का लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एंगल का स्क्वायर नहीं दिया है तो इसमें जो स्क्वायर है हम लोग को लिख सकते हैं। जैसे हम लोग देखो x ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर, तो हम लोग x स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये साइन का माथा में आ जाएगा, एंगल के माथा में नहीं होता बेटा, ध्यान में रखोगे इसको, हम लोग का ऐसे टाइप का करोगे। तो इन द प्लेस ऑफ साइन थीटा होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन प्लेस ऑफ देखो जैसे cos थीटा हो गया cos थीटा होल स्क्वायर, सो यू कैन राइट वी कैन राइट देखो cos स्क्वायर थीटा, एंगल का माथा में स्क्वायर नहीं होता है, ध्यान रखो बेटा। ठीक है ना, नाउ वी राइट हियर, ठीक इसमें देखो आ गया देखो ठीक 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, इसका 1 स्क्वायर माने 1 आ जाएगा, इसीलिए बार बार 1 स्क्वायर लिखोगे तो इसीलिए हम डिफाइन किया था। देखो नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ द देखो 1 माइनस sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, द फर्स्ट वैल्यू द sin थीटा एंड दैट वैल्यू विल बी द स्क्वायर, तो sin थीटा इक्वल टू कितना p by 8, तो यहाँ पे देखो 8 एंड अंडर रूट
113 the square. Okay, because sin theta का वैल्यू 8 by under root 113, so it will be the square. ठीक सेम देखो 1 माइनस इसमें देखो कितना b देखो 7 by under root 113 स्क्वायर, ये भी स्क्वायर आ जाएगा. ना इसको सिंप्लीफाई करो 1 माइनस 64 by 113, okay, divided by 1 minus, okay, 49 by 113. स्क्वायर का हम लोग को सीखा जाए अंडर रूट का 2 का स्क्वायर जो रहेगा ये किंतु 2 हो जाता है. हम लोग का रियल नंबर में सीख चुका था बेटा. ना इसको सिंप्लीफाई करो, देखो यहाँ पे हम इधर से कर बेटा, इसमें प्लेस कम है देखो, सो इसको देखो 13 एलसीएम हो जाए बेटा, 113 एलसीएम, तब 113 माइनस 64 divided by 113 minus 49 by 113 LCM. So LCM कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 49. ओके, 49 divided by 64. दिस इज द आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे cos square theta. First value the cot theta, then the value will be the square. Cot theta value कितना, tan theta का reciprocal b by p, तो b देखो यहाँ पे b by p 7, okay, 7 by p 8, this is the cos square, so it will be the 49 by 64. ये आंसर आ गया. ठीक है बेटा. सो ध्यान में रख दिया बेटा. देखो दोनों का वैल्यू सेम आ गया 49. So this is the answer. Pause the video, note down on your copy. Okay, hello student. The question number 8. If 3 cot A equal to 4 and check whether the 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A equal हो सकता है or not. Yes, ना, no तुमको रिमार्क लिखना है. तो first of all draw the right angle triangle. First draw the right angle triangle. Okay. And here you take the acute angle here A, and this is the right angle, so it will be the hypotenuse is का P A B. ठीक है ना बेटा. एक हम लोग का फर्स्ट ऑफ ऑल करोगे. नाउ गिवन देखो 3 cot A equal to 4 and this implies cot A equal to 4 by 3. So given. Now right here cot A equal to देखो tan A का रेसिप्रोकल P, तो B by P आ गया. आराम से करोगे. So here B 4, P 3. Now write H equal to under root देखो 3 square plus 4 square equal to 9 plus 16 equal to 25 equal to 5. तो इनका वैल्यू 5 आ गया. Now check. देखो check है. Now first of all check देखो 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A. Okay, first of all find the value 1 minus tan A का वैल्यू देखो P by B, तो 3 by 4. Okay, now write the 3 by 4. Now write 1 plus 3 by 4. Now LCM करोगे 4 LCM हो जाएगा देखो 4 and 4 minus 3 divided by 4 plus 3 by 4. ठीक है बेटा. Now you write the देखो 1 and 4 same cancel कर सकते हैं, 4 cancel कर सकते हैं, and by 1 by 5 बेटा. And here it is the one with the square, so it will be the is the square. हम only the value the find किया था square, so it is that देखो तुम ध्यान में रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा बेटा. ये बस 16, ये भी 16 आ जाएगा बेटा. ये 9 हो गया. ठीक है ना. ये देखो ये भी देखो इसी टाइप का आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट देखो वहां लोग किया था हम. ओके, 16 minus 9 and here देखो you write देखो 1 plus 9 by 16. ठीक है ना बेटा. यहाँ पे देखो 16 आ जाएगा. Now write here
सो घिचने से हो गया था, क्लियरली कर देता हूँ। ओके, नाउ इक्वल देन 1 minus 9 by 16 divided by 1 plus 9 by 16। ठीक है, ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 16 एलसीएम, ओके 16 minus 9 and 16 plus 9 by 16। ठीक है, इसी टाइप का हम यहाँ पे कर देते हैं। नाउ राइट हियर 7 by 16 divided by 25 by 16। ओके, 16 कैंसिल, 7 by 25। ठीक है बेटा, समझ गया चीज इसका आंसर। नाउ राइट हियर वैल्यू ऑफ द cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इनका वैल्यू। cos का वैल्यू कितना देखो, cos a b by h, b देखो यहाँ पे 4 by 5 एंड देन स्क्वायर माइनस साइन a p by h, इसको किंतु हमेशा लिखोगे बेटा p by h, p 3 by h 5 and then it will be the square। Okay, then 16 by 25 minus 9 by 25 and that was same denominator, same like term, so it was 16 7 by 25। so both the result of a result and this result same हो गया, तो this relation check हो जाएगा, yes बोला, ये वाला आंसर आ गया। pause the video, note down on your copy। okay student, the question number 9, the in figure, तुम्हारा किंतु फिगर क्वेश्चन में नहीं था, एनसीईआरटी को एंगल दे दिया था, ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल। सो फिगर तक इसी तरह क्वेश्चन होना चाहिए, तुम्हारा टीचर को तुम पूछोगे। इसको ग्राउंड था देखो, इसमें एंगल दे दिया, वहां पे लिखा वर्टेक्स पॉइंट में लिखा था ए, सो दिस इज द एंगल मेजरमेंट नहीं लिखा। सो गिवन देखो tan a इक्वल टू 1 by √3 वैल्यू, वो अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो tan a equal tan theta equal to p by b। ठीक है ना, ठीक दिस अकॉर्डिंग टू द एंगल कौन सा AP एंड AB, फर्स्ट ऑफ ऑल किंतु हम लोग का ए अनुसार चले जो गिवन दिया गया। इसके बाद सी भी है, देखो हम लोग सी के बाद में करेंगे। सो एंगल P के अनुसार देखो हम लोग को निकल गया। नाउ राइट देखो हियर tan A P, सो P का वैल्यू कितना 1, now write here 1, okay, and b under √3। now write the h equal to under √3 square plus 1 square। ठीक है ना, okay, this will be 3 plus 1 plus equal under √4 equal to 2, so h equal to value 2 आ गया। hypotenuse is 2 units, okay, 1 units and √3 units। now in the find the value of the, देखो जब राइट एंगल ट्रायंगल देगा, थ्री साइड का मालूम हो गया, a 1 units, √3 units and 2 units। now write the value and the question number देखो 1, sin a cos c plus cos a sin c। ठीक है मैडम, बड़ी आराम से इसको वैल्यू तक पुट करोगे, कोशिश करोगे। देखो साइन ए मीन साइन थीटा p by h, इसके अनुसार ये किंतु p बेटा चेंज होगा, p एंड b चेंज होगा, ध्यान में रखो। आगे हम लोग यहाँ पे लिख सकते देखो p by h माने 1 by 2 into, ये लगातार यदि कंटिन्यू हम लोग का देखो x एंड y जो लिखा रहता है x इंटू y, ये भी लिख सकते हैं x इंटू y। जब इसका वैल्यू पुट करोगे, x का वैल्यू होता है 2 एंड 2 इंटू y का वैल्यू 3, तो इसी तरह का हम लोग लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह का हम लोग क्रॉस सिंबल यूज कर सकते हैं, बाय यू कैन यूज द डॉट, सो डॉट भी यूज कर सकते हैं, क्रॉस द cos c के अनुसार ये किंतु p बेटा AP AB चेंज हो जाएगा बेटा, ध्यान में रखोगे। ताहले cos c दिस इज द b, तो b by h, तो b 1 by 2, नेक्स्ट प्लस cos a अकॉर्डिंग जैसे AP AB cos b by, ओके b by h, तो हमने क्या होगा तब √3 by 2 एंड sin c देखो क्या होगा, देखो sin c के देखो AB तो p by h √3 by 2। इसको तो ध्यान से करो बेटा, हाथ बात को रखो, उंगली रखो, इसको करो।
नाउ राइट देखो 1/4 प्लस 3/4 एंड देन देखो 4/4 इक्वल टू 1। इसका वैल्यू आप लोगों को 1 है। 4/4 कैंसिल तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट है तो प्लेस इज नॉट हियर, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 2। ओके नाउ राइट दैट साइड। ओके क्वेश्चन नंबर 2 देखो हियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो cos C minus sin A एंड sin C, ठीक है ना। ठीक वैल्यू पुट करोगे cos A मतलब दिस एंगल PB cos B by A मतलब √3/2 into cos C B, ओके 1/2। समझ गए चीज बेटा। माइनस sin A देखो एक है P दिस इज द P B by 1/2 into sin C means this angle AP √3/2, ठीक है ना बेटा। ओके देन √3/4 minus √3/4, so like difference it will be the 0। ये भी आंसर तुम्हारा आ गया। जैसे 3 minus 3 equal to 0 होता है, ठीक है। इसी तरह like √3/4 minus √3/0। ओके पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। ओके स्टूडेंट द क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग लास्ट में पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट बट तुम्हारा क्वेश्चन में एनसीईआरटी बुक में दूसरा टाइप के लेगा। हम दूसरा देखो ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, इसमें देखो ए राइट एंगल। ओके एवरी दिस बेस का ए साइड एच हो गया। ओके नाउ विल टेक दिस पी, इसको हम लोग पी अभी मान ला एंड बी को फाइंड करोगे। बी इज नॉट हियर बेटा, ठीक है ना। बी इज नॉट हियर, सो फर्स्ट बी भी नहीं है एच भी नहीं, फाइंड करोगे वैल्यू लो। खाली दिया गया क्वेश्चन दिया गया देखो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, माने इसको और इसको जोड़ के 25 हो रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर माने बी एंड पी आर को फाइंड करोगे। हाउ टू फाइंड? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख सकता है बाय द पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग यू कैन राइट देखो पी स्क्वायर वी कैन राइट देखो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। हम लोग का एक लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट समझ गया ये बाय द पाइथागोरस थ्योरम माने हाइपोटेन्यूज पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके नाउ राइट हियर दिस इंप्लाइज हम पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर को लेफ्ट हैंड कर लेकर आ रहा है, ट्रांसपोज कर रहा है, साइड चेंज हो जाएगा तो साइन चेंज हो गया क्यू आर स्क्वायर। नाउ हियर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा। सो नाउ राइट हियर दिस इंप्लाइज पी आर प्लस क्यू आर ए प्लस बी इंटू ए माइनस पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू इसका वैल्यू इज गिवन 5, so it will be the 5 square. Now this implies PR plus QR is given 25 centimeter. Now write here 25. Only write 25. You cannot write the centimeter because it is the linear equation. So linear equation में unit use नहीं होता है. Now write here PR minus QR equal to 25. Okay. Now this implies you can write here PR minus QR इक्वल टू 1। कैसे देखो हमका डिटागोशन 25x इक्वल टू 25 होगा। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 25/25, सो इसका कैपिटल 1, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1। इसका ध्यान में रखोगे लिनियर इक्वेशन का रूल मतलब फर्क है। इसका हम 1 आ गया तो pr प्लस qr इक्वल टू 1 आ गया मेरा। ओके नाउ राइट हियर नाउ वी कैन राइट देखो pr प्लस qr equal to 25. It is the given देखो PR plus QR equal to 25. Now here PR and find क्या देखो PR minus QR equal to 1. Now add करो दोनों add okay add करो तो cancel हो जाएगा तो 2PR equal to 26
ठीक है बेटा. Now this implies PR equal to 13. So PR का value 13 is given. Now write here 13 centimeter. Now you can write also देखो PR plus again the QR equal to 25. Again देखो equal to 25. Now PR minus QR equal to 1. Then subtract कर दो बेटा. यहाँ पे क्या करोगे? Subtract करो. Subtract करोगे तो माइनस ए प्लस ए माइनस हो जाएगा, ए काट जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो ए माइनस था ए प्लस हो गया सबट्रैक्ट होने के कारण. तो 2QR equal to 24. Then QR, this implies QR equal to 12. Okay, so it is the 12. ठीक है, समझ गया. तो तीनों साइड हम लोग को मालूम होना चाहिए. देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द. ओके, तो ट्रायंगल का ये ट्रायंगल, लेकिन यही ट्रायंगल के में देखो हम लोग का अनदर एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा. देन यू कैन फाइंड द साइन पी. सो इसका वर्टेक्स पॉइंट पी दिया. सो हम लोग इसका वैल्यू ले लेंगे पी ए ट्रायंगल के लिए. एंड इसका देखो वर्टेक्स पॉइंट यहाँ इसका वैल्यू ले आए, ये किंतु वैल्यू सकते हैं कैसे वैल्यू. देन यू कैन फाइंड देखो साइन पी. आसानी से देखो साइन वैल्यू बुलाओ ए 13 8 ओके एंड ए 5 एंड 12. इतना सेंटीमीटर लिख सकते हैं एंड 12 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर. ओके, सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं. कैन राइट 5 सेंटीमीटर. ओके, जब हम लोग साइन पी लिखोगे, साइन पी मतलब ए एंगल के अनुसार ए किंतु पी हो जाएगा बेटा. पी बाय एज माने 12 बाय 13. ठीक है बेटा, समझ गए चीज को. ठीक, इसका ऑपोजिट साइड जो एंगल का हम लोग यहाँ पे करोगे उनका ऑपोजिट साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, पी हो जाएगा. कि साइन पी का हम लोग को साइन थीटा को पी बाय एज पी द साइड आगे आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनदर क्वेश्चन cos p. cos p इक्वल टू कितना cos थीटा b बाय एज. तो यहाँ पे देखो इनको से b तो 5 बाय 13 एंड थर्ड देखो एंड 10 देखो p. ओके, 10p. तो 10p को अनुसार देखो एक परपेंडिकुलर इमेज. तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल p बाय b तो 12 बाय 5 हो जाएगा बेटा. एंड दिस विल द 12 बाय 5. ओके, दिस इज द आंसर. ओके, सो आई थिंक एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड दिस इज द वैल्यू. कैसे हाउ टू फाइंड द 12 and then 12 by 13 and 5 by 13 and 12 by 5. This is the answer. Okay, clear लिखोगे. Pause this video, note down on your copy. Hello student, the question number 11 देखो. The last question, the state whether the following true or false, justify your answer. The first question, the value of tan A is always less than 1. ना, tan A का वैल्यू समय से क्यों किंग हम लोग tan A के लिए ये तुम्हारा फॉल्स हो गया, ये कभी से नहीं हुआ. ठीक है बेटा, ये फॉल्स. नेक्स्ट देखो, sec equal to 12 for some value of angle A. Okay, it is the A is the value of angle I discussed, the acute angle. So it is the true. And देखो cos A is the abbreviation used for the cosine. cos A देखो कोसेंट है, इसका एब्रिविएशन. ये भी देखो फॉल्स हम लोग का. ओके, नाउ cot A is the product of cot A. ना, cot and A का कोई प्रोडक्ट होता है? नहीं होता है, क्योंकि इसका एक ही चीज है, एक ही समान, एक ही cot A में एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो. सो ये भी देखो फॉल्स. ये लोग प्रोडक्ट लिख रहे हैं, दिस फॉल्स. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, sin थीटा इक्वल 4 बाय सम एंगल. ना, थीटा इज द वैल्यू ऑफ द एंगल. ये भी फॉल्स हो गया. ठीक है बेटा. ओके, यदि अगर तुम्हारा मेरा वीडियो क्लास तुम लोग अच्छा लगे तो लाइक करोगे, शेयर करोगे एंड सब्सक्राइब करोगे टू माय चैनल. ओके, हम रिक्वेस्ट करो तुम लोग को, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर द अदर योर क्लासमेट. ओके, थैंक यू.